Hello friends, welcome back to the channel. So we completed chapter 2, 1 and 2, and let's start chapter 3, that is about interior of the earth. What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a thick cover of rocks, that is lithosphere? Have you ever seen photographs or images of a volcanic eruption on the television screen? I don't know what and it start like this. Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire, and magma flowing out of the volcanic crater? Definitely never seen, huh? Just we seen only images. The interior of the earth can be understood only by indirect evidences, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. So this should be the beginning statement, and that's it. All other questions are just useless, right? The configuration of the surface of the earth is largely a product of the processes operating in the interior of the earth. Exogenic as well as endogenic processes are constantly shaping the landscape. A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effects of endogenetic processes are ignored. Human life is largely influenced by the physiography of the region. Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence landscape development. To understand why the earth shakes or how a tsunami waves is generated, it is necessary that we know certain details of the interior of the earth. In the previous chapter, you have noted that the earth forming materials have been distributed in the form of layers from the crust to the core. It is interesting to know how scientists have gathered information about these layers. Yeah, this is interesting. Ki how scientists gathered uh, information about the earth, its layers. What are the characteristics of each of these layers? How they say ki this is the characteristic, core is of a solid, or so yeah, this is exactly what this chapter deals with. Introduction could be short and crisp and more interesting. Now, sources of information about the interior. The radius is 6,370 kilometers. So remember this figure. The radius of the earth is 6,370 अरे क्या बोल दिया 6,370 किलोमीटर 6370 kilometer. No one can reach the center of the earth and make observations or collect samples of the material. Under such conditions, you may wonder how scientists tell us about the earth's interior and the type of materials that exist at such depths. Most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimates and inferences, yet a part of the information is obtained through direct observations and analysis of materials. Now, direct sources. The most easily available solid earth material is surface rock or the rocks we get from mining areas. Gold mines in South Africa are as deep as 3 to 4 kilometers only. Going beyond this depth is not possible as it is very hot at this depth. Besides mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depths to explore the conditions in the crustal portions. Scientists world over are working on two major projects such as deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project. The deepest drill at Kola in Arctic region has so far reached a depth of only 12 kilometers, that is up to tropospheric height. Our troposphere is minimum 12 kilometer, I mean हाँ 8 to 18 यूजुअली माना जाता है, तो 8 to 12 भी माना जाता है. ओके, सो वी जस्ट हैव रीच्ड ओनली 12 किलोमीटर. दैट इज ऑल्सो वाई drilling this and many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of materials collected at different depths. Volcanic eruption forms another source of obtaining direct information. As and when the molten material magma is thrown onto the surface of the earth during volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis. However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma. Indirect sources. Analysis of properties of matter indirectly provides information about the interior. We know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depths. Moreover, it is also known that the density of the material also increases with depth.
It is possible to find the rate of change of these characteristics. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and the density of materials at different depths. The details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter. Another source of information are the meteors that at times reach the earth. However, it may be noted that material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. They are solid bodies developed out of material same as or similar to our planet. Hence, this becomes yet another source of information about the interior of the earth. The other indirect sources include gravitation, magnetic field and seismic activity. The gravitation force G is not the same at different latitudes on the surface. It is greater near the poles and less at the equator. So remember this statement कि gravity जो है greater near the poles and lesser at the equator. This is because of the distance from the center at the equator being greater than that at the poles. The gravity values also differ according to the mass of material. The uneven distribution of mass of material within the earth influences this value. The reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. These readings differ from the expected values. Such a difference is called gravity anomaly. So this is the deviation from expected values is called gravity anomaly. Gravity anomalies give us information about the distribution of mass of the material in the crust of the earth. Magnetic surveys also provide information about the distribution of magnetic materials in the crustal portion and thus provide information about the distribution of materials in this part. Seismic activity is one of the most important sources of information about the interior of the earth. Hence, we shall discuss it in some detail. Earthquake. The study of seismic waves provides a complete picture of the layered interior. An earthquake, in simple words, is shaking of the earth. It is a natural event. It is caused due to release of energy, which generates waves that travel in all directions. Why does the earth shake? The release of energy occurs along a fault. A fault is a sharp break in the crustal rocks. Rocks along a fault tend to move in opposite directions. As the overlying rock strata press them, the friction locks them together. However, their tendency to move apart at some point of time overcomes the friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. This causes a release of energy and the energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called the focus of an earthquake. The point where the energy is released is called focus of an earthquake. So it is below the earth's surface, right? The point where the energy released is called the focus of the earthquake. Alternatively, it is called the hypocenter. That means a focus is also called as hypocenter. The energy waves traveling in different directions reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. It is the first one to experience the waves. It is a point directly above the focus. I hope you know the 2 points, that is epicenter and hypocenter or focus. So epicenter or focus is the point below the earth's surface or in the interior of the earth where the earthquake originates, and when it travels through in different directions, the first wave that hits the surface, that is called that point would be called as epicenter, and it is usually directly above the focus. Now, earthquake waves. All natural earthquake takes place in the lithosphere. You all learn about different layers of the earth later in this chapter. It is sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of depth of up to 200 km from the surface of the earth. So lithosphere का डेप्थ याद रखना, इसका डेप्थ है 200 km. An instrument called seismograph records the waves reaching the surface. A curve of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1. Note that the curve shows 3 distinct sections, each representing different layers of wave patterns. Earthquake waves are basically of 2 types: body waves and surface waves. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. Hence the name बॉडी वेव्स. यहाँ पर दिखाया गया, देखो earthquake waves को P waves, S waves, surface waves. ओके, हम बाद में पढ़ते हैं. अभी देखो, hence the name body waves. The body waves interact with the surface rocks and generate new sets of waves called surface waves. ठीक है, तो पहले बॉडी वेव्स जनरेट होते हैं. बॉडी वेव्स फिर रॉक्स के साथ जो है इंटरेक्ट करता है और क्या करते हैं, हमारा सरफेस वेव्स जनरेट होता है. तो सरफेस वेव्स आर सेकेंडरी वेव्स.
These waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through materials with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. The denser the material, the higher is the velocity. Their direction also changes as they reflect or refract when coming across materials with different densities. There are two types of body waves. They are called P and S waves. P waves move faster and are the first to arrive at the surface. These are also called primary waves. The P waves are similar to sound waves. They travel through gaseous, liquid, and solid materials. Right? So P waves can travel through gaseous, liquid, and solid materials. That means all the mediums. And S waves arrive at the surface with some time lag. ये P wave के बाद आता है. These are called secondary waves. An important fact about S waves is that they can travel only through the solid materials. And another important aspect of S wave is that they can travel only through the solid materials. This characteristics of S wave is quite important. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth. That's why S wave is this feature particularly कि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम के थ्रू ही जा सकता है. तो ये साइंटिस्ट को बहुत क्लू दिया है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. हम बाद में देखेंगे उसको कि रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड व्हेरेज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक. द वेरिएशंस इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ. द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ. ठीक है. सरफेस वेव्स हमारा सबसे लास्ट जो है सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है. These waves are most destructive, बट ये जो सरफेस वेव्स जो है ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं. They cause displacement of rocks, hence the collapse of structure occurs. ओके. तो हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ वेव्स, दैट इज पी वेव्स एंड एस वेव्स. पी वेव्स जो बहुत स्पीडी होती है, पहले रीच करता है, देन उसके बाद एस वेव्स आता है. और ये दोनों वेव जब रॉक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा सरफेस वेव जनरेट होता है. और सरफेस वेव्स जो है ये क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होता है. ठीक है. डिस्ट्रक्टिव होता है. और ये सिस्मोग्राफ में लास्ट में रिकॉर्ड होता है, मतलब लास्ट में पहुँचते हैं. और एक चीज़ पढ़ा कि हमने पी वेव जो है ये प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, और ये किसी भी मीडियम में जा सकते हैं. ठीक है. और एस वेव जो है ये ओनली सॉलिड मीडियम के थ्रू जा सकता है. और इन्फॉर्मेशन हम और इन्फॉर्मेशन एक पढ़ा कि डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वेव का स्पीड उतना ज़्यादा होगा. Now propagation of earthquake waves. Different types of earthquake waves travel in different manners. As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks through which they pass. P waves vibrate parallel to the direction of the wave. P waves vibrate parallel to the direction of the wave. This exerts pressure on the material in the direction of the propagation. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretching and squeezing of the material. Other three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation. The direction of vibrations of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane. Hence, they create troughs and crests in the material through which they pass. Surface waves are considered to be the most damaging waves. तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा कि पी वेव जो होती है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डेफिनेटली पैरेलल टू, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये जैसे कि एक रोप को आपने ये कर दिया तो आपको ये रोप के आगे ऊपर जो एक शेड नजर आएगा ना, उसी तरह मूव करते हैं ऐसे पैरेलली. ठीक है. और इसे पैरेलली मूव करते हैं. इस तरीके से ये स्क्वीज होगा और फिर जाएगा ऐसे करके प्रोपागेट होता है. बट एस वेव जो है ये परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन होती है, मतलब तो आई थिंक पहला वाला गलत बोल दिया क्या मैंने. परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री में होगा ऐसे करके. ठीक है. तो हाँ, इसको थोड़ा डिफिकल्ट है ना. ओके वेट, यहाँ पर कुछ दिया गया है ना, छो भी देना चाहिए था यार. ये देखो, और ये दिया नहीं गया तो ठीक है. इसको आप एक बार देख लीजिए कि कैसा डायरेक्शन रहता है, और ये याद रखिएगा, ज़रूर याद रखना होगा कि
क्या है कि पी वेव जो होती है ये क्या करता है, स्क्वीज एंड स्ट्रेच करता है, और ये जो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होते हैं। वेट ओके, तो आई विल सजेस्ट यू कि यू गो टू अदर सोर्सेज एंड कंसल्ट अदर सोर्सेज टू क्लियर दिस आइडिया. Currently I got confused with the concept, and I don't have any other materials nearby, so I am unable to check it now. So definitely I will check it later, and I will suggest you to consult other sources to clear the concept. Okay, so there will be you will get animations and all in the USGS website. Okay, तो वहाँ से मैं आपको चेक करने के लिए बोलूँगा. ओके, तो मैं भी इसे बाद में देखूंगा. इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन. Earthquake waves get recorded in seismographs located at far off locations. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called the shadow zone. और यही शैडो जोन हम किस लिए बनता है, वही पी एंड एस वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा कि पी वेव्स जो होती है ये हर कोई मीडियम के थ्रू जा सकता है, बट एस वेव्स जो है नहीं जा सकते. बट पी वेव भी कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है और वहाँ पर जो है शैडो जोन बन जाता है. तो वहाँ से साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें निकाली है जो हमको जानना है. द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील्स दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एक्जिस्ट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन. And so the shadow zones of P, figure 3.2 A and B show the shadow zones of P and S waves. It was observed that seismographs located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. However, the seismograph located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P waves but not that of S waves. Thus, a zone between 105 degree and 145 degree from epicenter was identified as the shadow zone for both the types of waves. ओके, तो 105 टू 145 के अंदर क्या है ना, शैडो जोन है. यहाँ पर कोई भी वेव जो है नहीं रिकॉर्ड होते. द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव्स एस वेव्स, एंड 10 डिग्री 5 से लेकर 1 क्या होगा 1 कितना डिग्री होगा, देखो इस फोटो को अगर इसको देखेंगे तो देखो ये तो ये वाला एस वेव शैडो जोन है 1052, इधर भी 105, और ये जो है देखो 105 से लेकर 105 तक पी वेव का शैडो जोन है, और बाकी पूरा जो है एस वेव का शैडो जोन है 1052 से लेकर बाकी पूरा. तो ये एक्चुअल सर्कल को कितना ये काउंट कितना डिग्री ले आई है, मतलब काउंट क्या वो तो नहीं बताया ना. यहाँ पर 180 लिया या फिर 360 लिया, वो कहाँ लिखा है यहाँ पर. बाय द वे, सो एव फ्रॉम दी एपिसेंटर, तो 105 टू 145 तक क्या है ना पी जोन का पी वेव का शैडो जोन है, और 105 से लेकर पूरा रीजन, मतलब उधर से 105 से लेकर इधर से भी 105 तक की जो है एस वेव का शैडो जोन है. द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स. द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द पी वेव्स. Yes, the shadow zone of P waves appears as a band around the Earth between 105 and 145 degree away from the epicenter. The shadow zone of S waves is not only larger in extent, but it also a little over 40% of the Earth's surface. यहाँ पर आप सिंपली क्या आप 11 में हो क्लास, तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पी वेव शैडो जोन एंड एस वेव शैडो जोन के बीच का जो डिफरेंस है वो लिखिए. यू कैन ड्रॉ द शैडो जोन फॉर एनी अर्थक्वेक प्रोवाइडेड यू नो द लोकेशन ऑफ द एपिसेंटर. तो अगर आपको एपिसेंटर पता है कितने डिग्री में एपिसेंटर है, तो आप इजीली क्या है लोकेशन पता है एपिसेंटर में, तो उस वहाँ से लेकर उस पॉइंट से लेकर जो 1 डिग्री 5 से बीच के अंदर जो पड़ेगा जो एरिया, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी वेव का शैडो जोन. और इस 105 से लेकर इधर में भी 105 जो एरिया होगा ये पूरा एरिया हो जाएगा आपका एस वेव का शैडो जोन.
तो ऐसे आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हम पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। These are generated due to sliding of rocks along a fault plane. A special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. Okay, तो देखो स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या है, एक वॉल्केनिक अर्थक्वेक है। मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट होगा उसके कारण अर्थक्वेक हो सकता है, बट हर टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वॉल्केनोज नहीं हो सकता। हाउएवर दीज आर कन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, बट ये सिर्फ एक्टिव वॉल्केनोज के एरियाज में ही क्या है, कन्फाइंड है, ठीक है। एंड नंबर 3, इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स कॉजिंग माइनर ट्रेमर्स, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। तो देखो टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक होता है, कोलैप्स अर्थक्वेक होता है, and then ground shaking may also occur due to the explosion of chemical or nuclear devices. Such tremors are called explosion earthquake. तो explosion earthquake भी आ सकता है। And one is more, that is the earthquakes that occur in areas of large reservoirs are referred to as reservoir induced earthquakes। ठीक है, जहाँ पर डैम वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पर भी उसके जो प्रेशर है उसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो ये सारे टाइप्स जो है 5, एक आप याद रखना, कोई MCQ वाले क्वेश्चंस में आ जा सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा और ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे इस सारे कन्फ्यूजिंग टॉपिक से। मैं रिसेंटली एक आपके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख रहा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन शेयर करूँगा आपके साथ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको चीज़ें पता चलेगा। द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या है, तो हमने 5 टाइप्स पढ़ा। एक तो हो गया टेक्टोनिक, दूसरा हो गया वॉल्केनिक, तीसरी हो गया आपका कोलैप्स, ओके, चौथी हो गया आपका क्या, चौथी एक्सप्लोजन, एंड फिफ्थ हो गया आपका रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक्स, द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। द मैग्नीट्यूड scale is known as Richter scale. The magnitude relates to the energy released during the quake. The magnitude is expressed in numbers 0 to 10. The intensity scale is named after Mercalli, an Italian seismologist. The intensity of scale takes into account the visible damage caused by the event. ठीक है, द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखने वाली है कि रिक्टर स्केल और मैग्नीट्यूड स्केल में, मार्कली स्केल में हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल जो है ये मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और मार्कली स्केल जो है ये आपका इंटेंसिटी को मेजर करता है। ओके, तो वैसे याद रख सकते हो कि मिस्टर एम आई आपका मोबाइल फ़ोन होगा, मेरा मोबाइल फ़ोन MI का है, तो मिस्टर MI, ओके, मिस्टर MI मतलब मिस्टर मतलब यहाँ पर देखो आर मतलब रिक्टर स्केल, आर का मीनिंग रिक्टर स्केल होगा और एम का होगा मैग्नीट्यूड, और इधर होगा आपका मार्कली स्केल और ये मेजर कर रहा है आई यानी इंटेंसिटी। ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर आपका खुद का निमोनी करके याद रख सकते हो कोई भी, या फिर आप ऐसे ही याद रख सकते हो, बट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि देखो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 स्केल है, एक हो गया रिक्टर स्केल और एक हो गया मर्कली स्केल। रिक्टर स्केल में हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, इसका मतलब ये है कि अर्थक्वेक का जो वेव था उसमें कितना एनर्जी था, ठीक है। और ये स्केल जो है हम स्केल 0 to 10 से हम इसका जो लिमिट है 10 है और 0 से स्टार्ट होता है। मर्कली स्केल जो है ये हमारा क्या मेजर करता है, ये हमारा मेजर करता है कि इंटेंसिटी, ओके। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज, और इंटेंसिटी मतलब क्या है ना, विजिबल डैमेज। इंटेंसिटी मेजर करते हैं नहीं उस अर्थक्वेक के कारण हमारा कितना डैमेज हुआ प्रॉपर्टीज़ को, ह्यूमन लाइव्स को, तो उसे हम मार्कल स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। और इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 12 है और मिनिमम जो वैल्यू है नॉट 0, इट इज़ 1, ठीक है। तो 1 to 12 वैल्यू है, तो ये डिफरेंस है मार्कली एंड रिक्टर स्केल में, तो ये आपको याद रखना है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स इज ए नेचुरल हैजर्ड, द फॉलोइंग, बट sometimes it is man induced. The following are the immediate hazardous effects of earthquake: ground shaking, differential ground settlement, land and mud slide, soil liquefaction, ground lurching, avalanches, ground displacement, floods from dam and levee failures, ये देखो floods from dam and levee failures, okay, fire, structural collapse,
फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सुनामी, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। द फर्स्ट लिस्टेड above have some bearings upon landforms while others may be considered the effects causing immediate concern of the to the life and properties of people in the region. The effect of tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic waters and the magnitude is sufficiently high. Tsunamis are waves generated by the tremors and not, ये देखो, मान लो यहाँ पर एक अर्थक्वेक हुआ, उसके कारण सुनामी आया, तो मैग्नीट्यूड तो उसका हाई था क्योंकि बहुत ज़ोर से जो है अर्थक्वेक वेव निकाला था, तो वहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा सा सुनामी होगा। बट मान लो कि जहाँ पर सुनामी हुआ उसकी कोस्टल एरियाज़ में कोई क्या है, पॉपुलेशन नहीं था, या फिर कोई इतना स्ट्रक्चर नहीं था जो कि मतलब ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, जो हमारा मार्कल स्केल का वैल्यू है वो घट जाएगा। तो देखो, रिक्टर स्केल का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है बट मार्कल स्केल का क्या होगा, मार्कल स्केल का लो हो सकता है, मतलब दोनों अलग है ना, ठीक है। अब कभी कभी रिक्टर स्केल भी ज़्यादा है और मार्कल स्केल भी ज़्यादा हो सकता है। अब कभी कभी कि रिक्टर स्केल कम है बट मार्कल स्केल ज़्यादा हो सकता है। मान लो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में थोड़ी सी अर्थक्वेक हुआ और वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स था सारे जो है उतना स्ट्रांग नहीं था, स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है, तो क्या होगा, सारे नष्ट हो जाएगा और बहुत प्रॉपर्टी डैमेज होगा। तो उसको वहाँ पर क्या होगा कि मार्कल स्केल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा, हालांकि रिक्टर स्केल का वैल्यू कम ही था, तो ऐसा आपको समझना होगा। देन सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। ओके, सुनामीज आर वेव्स है जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स, बट ये अर्थक्वेक नहीं है। दो द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, इट्स इफेक्ट्स आर डिवास्टेटिंग प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 ऑन रिक्टर स्केल। तो अगर किसी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल में 5 हो जाता है तो माना जाता है कि वो बहुत डैमेज करेगा। ओके, ना देखो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक अगर आपका डिटेल में लिखना है तो ये सारे जो यहाँ पर 12 पॉइंट्स दिया गया है, ग्राउंड शेकिंग, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, लैंड एंड मड स्लाइड्स, सॉइल लिक्विफेक्शन, तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखोगे और इसको एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब ये जो कीवर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके बारे में आप जान लेना चाहिए। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, मतलब आपके एग्ज़ाम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाला है तो इस पॉइंट को आप जान लो तो आप इजीली लिख पाओगे। ओके, ना देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंसेज, द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हैजर्ड इफ अ ट्रेमर ऑफ, अच्छा मैंने एक गलती कर रहा हूँ है ना कि मैंने प्रिपरेशन EMRS की कर रहा हूँ और ये काफ़ी बार मैं शिफ्ट हो जा रहा हूँ ना फोकस से, यार बता दे रहा हूँ कि यार ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वगैरह, तो आई थिंक ये सब नहीं बोलना चाहिए। बाय द वे आप भी शायद EMRS के लिए यहाँ पर आए हो, सॉरी फॉर दैट। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंसेज, द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हैजर्ड इफ अ ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक्स प्लेस it can cause heavy damage to the life and property of people. However, not all the parts of the globe necessarily experience a major shock. We shall be discussing the distribution of earthquakes and volcanoes with some details in the next chapter. Note that the quakes of high magnitude, that is 8 plus, are quite rare. Okay, so magnitude of 8 plus are quite rare earthquake ऐसा होता है जो कि जिसका magnitude 8 plus होता है। They occur once in 1 to 2 years, whereas those of tiny types occur almost every minute। देखो जो 8 प्लस या 8 के आसपास जो अर्थक्वेक है वो 1 मतलब पर ईयर, एक या 2 ईयर में एक बार ही होता है। बट जो टाइनी वेव्स है वो लगभग हर मिनट में हो रहा है ऐसे, क्योंकि हमारा जो प्लेट्स है वो क्या है, वो मोबाइल से हमेशा मतलब फ्लोटिंग स्टेट में है, इसलिए छोटे छोटे ट्रेमर्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक सीन दिखाया गया, देखो सीन मतलब ये जो है डिजास्टरस इफेक्ट दिखाएगा, आप बोल सकते हो। देखो एशियन डेथ टोल, ये थिंक क्या देख रहे हैं इस पर, हमारा वो 2004 का है क्या ये सुनामी, हाँ सुमात्रा उसी का बात कर रहे हैं आई थिंक यहाँ पर, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब देखो स्ट्रक्चर अब आता है स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा टॉपिक था, 5 इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिर हमने अर्थक्वेक के बारे में जाना और अर्थक्वेक के बारे में लगभग पी वेव्स, एस वेव्स, इसका टाइप्स जाना, बॉडी वेव, सरफेस वेव्स जाना, और फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा जाना, फिर अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है वो, अर्थक्वेक्स का इफेक्ट्स,
अर्थक्वेक का टाइप, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आ रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्या है, फर्स्ट लेयर क्या होती है, क्रस्ट होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज ब्रिटल इन नेचर, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज, ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द मेन thickness of oceanic crust is 5 km, whereas that of the continent is around 30 km, but we told ki the lithosphere is about 200 km, so remember that. So when we are saying crust, we are talking about only the uppermost 30 km maximum. The continental crust, acha, maximum it can be 70 km. So the continental crust is thicker in the areas of major mountain system, it is as much as 70 km thick in the Himalayan region. तो ये तो मैक्सिमम हो गया। ओके, नाउ होता है मेंटल, क्रास्ट के बाद आता है मेंटल। तो द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रास्ट इज कॉल्ड द मेंटल। प्लस मैक्सिमम 70 के बाद स्टार्ट होता है मेंटल, या फिर 30 के बाद स्टार्ट होता है मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। और मेंटल हमने पढ़ा था एक निमोनिक कि CMRGL करके, CMRGL मैंने शायद पिछले कई वीडियो में इसको बताया था और एक बार। तो C फॉर कंडार्ट, M फॉर मोहो, R फॉर रेपिटी, G फॉर गुटनबर्ग, L फॉर लेमन। अब देखो C फॉर कंडार्ट, तो ये तो आगे आपका हम, क्योंकि क्रास्ट को ही हम सियाल एंड सीमा में डिवाइड कर रहे हैं, तो सियाल एंड सीमा के बीच में जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कंडार्ट डिसकंटिन्यूटी। अब ये सीमा खत्म होता है तो क्रास्ट खत्म होता है हमारा, तो ये पूरा क्रास्ट खत्म हो गया। अब क्रास्ट और मेंटल के बीच में हम क्या बोलेंगे, इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, क्रास्ट एंड मेंटल के बीच में जो, मतलब क्रास्ट खत्म हुआ मेंटल स्टार्ट हुआ। अब मेंटल के भी दो भाग रहते हैं, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, तो उसको हम बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी। अब मेंटल एंड कोर स्टार्ट होगा, तो मेंटल एंड कोर के बीच में जो रहेगा उसे हम कहेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब कोर का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है आउटर कोर, इनर कोर, तो इसके मिडिल में जो रहेगा उसे हम बोलते हैं क्या, लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो CMRGL करके। ओके, तो हमने देखा कि मेंटल का जो डेप्थ है वो कितना है, 2900 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैंने एक रिसेंटली क्वेश्चन देखा कि वहाँ पर बताया गया था कि किसका डेप्थ ज़्यादा है, इनर कोर का या आउटर कोर का। तो क्या है, आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, तो आप बता सकते हो ना किसका डेप्थ ज़्यादा है। The upper portion of the mantle is called asthenosphere. Definitely, the word astheno means weak. It is considered to be extending up to 400 किलोमीटर। तो देखो हमने पढ़ा लिथोस्फीयर जो है कितना तक था, 200 किलोमीटर, बट एस्थेनोस्फीयर की बात क्या कर रहे हैं, एस्थेनोस्फीयर बोल रहे हैं कि हमारा एस्थेनोस्फीयर जो स्टार्ट होता है वो होता है मेंटल की अपर पोर्शन, यानी क्रास्ट के 30, उसके बाद मेंटल स्टार्ट होता है। तो अपर पोर्शन कितना तक ले सकते हैं पता नहीं, बट 30 से मान लो, अगर 70 से भी आप पकड़ लो तो 70 से 400 तक आपका एस्थेनोस्फीयर बन जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर का डेप्थ कितना होता है, मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर रहता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स its way to the surface during volcanic eruption. The crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere. अब ये क्रास्ट और अपरमोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल को मिला के जो कि 200 किलोमीटर तक हमारा लिथोस्फीयर बनता है। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। जो लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड दी एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो जो लोअर मेंटल होता है वो एस्थेनोस्फीयर के लास्ट तक रहता है। इट इज़ इन सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में है। एस्थेनोस्फीयर दैट इज़ नॉट particularly solid, but the lower mantle extends beyond the asthenosphere, जो कि एस्थेनोस्फीयर के बाद में रहता है, एस्थेनोस्फीयर के बाद में जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो सॉलिड है और सॉलिड स्टेट में है। ओके, तो ये बात है। एस्थेनोस्फीयर क्या है कि एस्थेनोस्फीयर 400 तक की है, बट देखो 200 किलोमीटर की जो है लिथोस्फीयर है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर, और जो लोअर मेंटल है वो जो कि एस्थेनोस्फीयर के बियॉन्ड है वो सॉलिड स्टेट में है, ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एस्थेनोस्फीयर तो है ही 400 किलोमीटर तक, क्योंकि हमारा जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 to 100 किलोमीटर ठीक है, क्रास्ट को माना जा रहा है 100 किलोमीटर तक ले जा रहा है यहाँ पर देखो। फिर हम मेंटल को हम 2900 तक ले रहा है मेंटल को। ओके,
और पराग की लिथोस्फीयर जो है हम 200 तक की काउंट कर रहे हैं लिथोस्फीयर को, और उसके बाद 400 तक को हम एस्ट्रोनोस्फीयर मान रहा है, ठीक है। और एस्ट्रोनोस्फीयर के बियॉन्ड जो पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में है मेंटल की। नाउ द कोर एज इंडिकेटेड अर्लियर द अर्थक्वेक वेव velocities helped in understanding the existence of the core of the earth. The core mantle boundary is located at the depth of 2000 किलोमीटर। कोर मेंटल बाउंड्री यानी जहाँ पर मेंटल खत्म हो रहा है, कोर स्टार्ट है, तो वो क्या है 2900 किलोमीटर, ये आप इमेज से देख सकते हो, ठीक है। नाउ कोर कितना तक जाएगा, डेफिनेटली 6378 किलोमीटर तक यहाँ पर ले जा रहा है। हमने रेडियस पढ़ा था कितना 6370, बट यहाँ पर 378 तक ली जा रहा है, ओके। तो यही एग्जैक्ट फिगर है 6378, ओके। नाउ द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। ये हमने वो अर्थक्वेक प्रॉपर्टी वाली चीज़ में वहाँ से पता लगाया गया है अर्थक्वेक वेव्स के थ्रू कि द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट बिकॉज हियर द you know that S wave does not pass. Okay, the core is made up of very heavy material mostly constituted by nickel and iron. और ये जो इनर कोर है किससे बनता है, निकल एंड आयरन से बनता है। इट्स समटाइम्स रेफर्ड टू एज द नीफे लेयर, एंड इसको हम नीफे लेयर भी बोलते हैं या फिर नाइफ लेयर बोलते हैं, ठीक है। द कोर इज मेड अप ऑफ very heavy material mostly constituted by nickel and iron. It is sometimes referred to as the नीफे लेयर, ओके। तो ये हमने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इतनी और भी डिटेल में आपको जानना है, ठीक है। अगर आप ये मेरे वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने ये सीरीज बेसिकली एनसीईआरटी को कवर करने के लिए ही है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वहाँ से कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करने का कोशिश हम कर रहा है। कितना याद कर पाता है, कितनी चीज़ों को रिलेट कर पाता है, कितना समझ पाता है, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर, ठीक है। Now volcanoes and volcanic landforms. You may have seen photographs or pictures of volcanoes on a number of occasions. A volcano is a place where gases, ashes, and or molten rock material, lava escape to the ground. A volcano is called an active volcano if the materials mentioned are being released or have been released out in the recent past. The layer below the solid crust is mantle. We know it has higher density than that of the crust. Definitely up to 100 kilometer we are taking as crust, and then up to 2900, that means 2800 kilometer thick it is na. The mantle contains a weaker zone called asthenosphere that is up to 400 kilometer, मतलब 100 to 400. It is from this that the molten rock materials find their way to the surface. The material in the upper mantle portion is called magma. When it starts moving out towards the crust or it reaches the surface, it is referred to as lava. So what is the difference between lava and magma? I hope you know already. The material that reaches the ground includes lava flows, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash and dust, and gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds, and minor amounts of chlorine, hydrogen and argon. Now volcanoes. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज क्या है, ठीक है। और वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, स्पेसिफिकली आप एक एक टाइप की वॉल्केनोज को प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है और कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रखना है। वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस. Major types of volcanoes are as follows. Sealed volcanoes. Barring the basalt flows, the sealed volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. Okay. Barring the basalt flows, the sealed volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. The Hawaiian volcanoes are the most famous examples. These volcanoes are mostly made up of basalt. तो sealed volcanoes made up of basalt होती है और हवाईयन एक बेस्ट एग्जाम्पल है और ये लार्जेस्ट वॉल्केनोज है. ठीक है, हम क्या क्या सील्ड वॉल्केनो लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी वॉल्केनोज ऑन दी अर्थ. ठीक है. नाउ these volcanoes are mostly made of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. और basalt कैसा होता है, बहुत ही fluid होता है. जहाँ भी ये निकालता है तो बहुत ही fluid होता है. हवाईयन में फिशर टाइप का होता है. तो फॉर दिस रीजन these volcanoes are not steep. इसके लिए ये volcanoes जो होता है steep नहीं होते. जो ग्रेडियंट है, स्टीप है, जो ढाल है वो कम आता है. दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट. बट किसी तरीके से अगर वेंट में जो जहाँ से निकलता है वो लावा, अगर उसमें
वाटर चला जाता है तो वहाँ से एक्सप्लोजन हो सकता है। अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज बाई लो एक्सप्लोसिविटी, ठीक है, अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज बाई लो एक्सप्लोसिविटी। चुपचाप शांति से लावा वहाँ से निकलते रहते हैं बस। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन एट द टॉप ऑफ द इवेंट एंड डेवलप्स इनटू द सिंडर कोन। तो अगर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए फाउंटेन एंड थ्रोज आउट द कोन, एक्सप्लोजन हुआ तो जो कोन होगा वो वहाँ से चला जाएगा, क्या ब्लास्ट होगा तो एट द टॉप वो हट जाएगा एट द वेंट एंड डेवलप्स इनटू द सिंडर कोन, ठीक है। तो वहाँ से जो एक है कोन बन जाएगा उसे हम सिंडर कोन बोलते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो ये जो है सील्ड वॉल्केनो, ये पिक्चर आप देखो तो इसी को हम कोन बोलते हैं, मतलब उसको सिंडर कोन बोलते हैं। नाउ composite volcanoes, so these volcanoes are characterized by eruptions of cooler and more viscous lavas than basalt, okay। तो बेसल्ट जो है बहुत ही क्या था, फ्लूइड था, बट इस बेसल्ट से ज़्यादा विस्कस है। विस्कस मतलब उससे उतना फ्लूइड नहीं है। दिज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शंस, और ये काफ़ी बार एक्सप्लोसिव इरप्शंस करते हैं। अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एसेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड, ठीक है। और लावा के साथ बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल यानी जो मिक्सचर ऑफ गैसेस, एसिड्स, डस्ट वगैरह, रॉक्स, पार्टिकल्स, वो सारे चीज़ें निकाल के आते हैं। दिस मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग्स, और ये चारों तरफ यहाँ पर वेंट के चारों तरफ जो है जम जाते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एंड दिस मेक्स द माउंट्स अपीयर एज ए कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, और वहाँ से बनता है आपका कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। थोड़ा जटिल है। नाउ कैल्डेरा, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनोज। ये कैल्डेरा जो होता है ये मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होता है अर्थ में। दे आर एक्चुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। तो ये जब भी लावा यहाँ से निकलता है तो वो खुद ही टूट जाता है, हालांकि मतलब ठीक है टूट जाता है, और जो है इसलिए इसका स्ट्रक्चर कोई बिल्ड नहीं होता। दे कोलैप्स डिप्रेशंस आर कॉल्ड कैल्डराज, और ये जो कोलैप्स डिप्रेशन जो बनते हैं उसे हम कैल्डराज कहते हैं। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चेंबर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट इज ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि जो मैग्मा चेंबर है वो सरफेस के नीचे ज़्यादा दूर नहीं है, सरफेस से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीकी लोकेटेड है। और वहाँ पर जो लावा जो मैग्मा जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सप्लाइंग इज नॉट ओनली ह्यूज, बहुत बड़ा है, बट इज ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी, ओके। ये क्या है, फ्लैट बेसल्ट प्रोविंसेज। दिज वॉल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर डेकन ट्रैप की बात कर रहे हैं, सिंपल किलोमीटर ऑफ थिक बेसल्ट लावा फ्लोज। देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ more than 50 meter. Individual flows may extend for hundreds of km. The Deccan Troughs from India presently covering most of the Maharashtra plateau are a much larger flat basalt province. It is believed that initially the trough formations covered a much larger area than the present. और ये माना जाता है कि पहले और भी कवर्ड जो एरियाज है बेसल्ट कवरिंग एरिया है वो ज़्यादा था। Now mid oceanic ridge volcanoes, these volcanoes occur in the oceanic areas. There is a system of mid oceanic ridges more than 70,000 km long that stretches through all the ocean basins. The central portion of this ridge experiences frequent eruptions. We shall be discussing this in detail in the next chapter, okay। तो ये जो वॉल्केनिक टाइप्स है और भी सारे हैं, और हम बाद में किसी और डॉक्यूमेंट से इसको पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। Now volcanic landforms, intrusive forms. The lava that is released during volcanic eruptions on cooling develops into igneous rocks. The cooling may take place either on reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion. Depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks cooling at the surface and plutonic rocks cooling in the crust. जो सरफेस के नीचे जम जाते हैं उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, और जो सरफेस में आ जाते हैं उसे हम वॉल्केनिक कहेंगे, ठीक है। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रास्टल पोर्शंस एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। डेफिनेटली फॉर्म डिफरेंट होते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म। सम ऑफ द फॉर्म्स आर शोन इन फिगर। तो जो प्लूटोनिक है वही इंट्रूसिव है, और यहाँ पर कुछ फॉर्म्स दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो
तो ये एक क्वेश्चन ये भी देखा मैंने बीपीएससी में, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो बीपीएससी मान लेना, क्योंकि उसी का रिसेंट में सॉल्व कर रहा था पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है, डाइक जो है, सॉरी हाँ, स्टॉक, डाइक जो है, बैथोलिथ जो है, लकोलिथ जो है, सील जो है, तो सील, डाइक, ये सारे क्या है ना, इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होना। तो अब देखो इसको डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पर जो फीचर्स दिखाया गया है पर, तो उसके बारे में बताया गया। तो बेथोलिथ क्या है, ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। तो ये बेथोलिथ लार्ज डोम शेप का होता है। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डेनोटेशनल प्रोसेसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल। दे कवर large areas and at times assume depth that may be several kilometers. These are granitic bodies. Batholiths are the cooled portion of magma chambers. ठीक है। तो क्या होता है कि बैथोलिथ जो है ये एक्चुअली जो है कूल्ड पोर्शंस ऑफ द मैग्मा चेम्बर्स। तो मैग्मा चेम्बर है वो ठंड हो जाता है, वहाँ से बैथोलिथ बनता है और इसका शेप जो है ये डोम शेप्ड होता है। और ये कब बाहर आता है, जब ऊपर का जो लेयर होगा वो खाई हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, तब ये बाहर आएगा। और ये दीजर ग्रेनाइटिक बॉडीज़ होती है, ये ग्रेनाइट रॉक से बनता है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो लैकोलिथ, तो बैथोलिथ हमने जाना। लैकोलिथ क्या है, दीज आर लार्ज डोम शेप्ड, ये भी डोम शेप्ड है, इंट्रूसिव बॉडीज विथ ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो। It resembles the surface volcanic domes of composite volcano. Only these are located at deeper depths. It can be regarded as the localized source of lava that finds its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rocks. Most of these now exfoliated are examples of laccoliths or batholiths. तो हमने एक बार पिक्चर को कंसल्ट करते हैं। देखो क्या है, ये तो बैथोलिथ है, तो ये कूलर पोर्शन है। अब देखो ये यहाँ पर मैग्मा चेम्बर है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ से एक पाइप के थ्रू क्या है ना ऊपर में आके और एक छोटा सा डोम शेप स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको हम लैकोलिथ बोलते हैं, ठीक ना। यहीं बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ था कि देखो फिर से पढ़ते हैं, दीज आर लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज विथ ए लेवल बेस, और इसका बेस जो है लेवल होता है, एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंडुइट फ्रॉम बिलो, ठीक है। ये एक पाइप लाइक कंडुइट के साथ जॉइन होता है, जो जिस पाइप के थ्रू लावा ऊपर आता है ऐसे करके। एंड इट रिजेंबल्स द सरफेस वॉल्केनिक डोम्स ऑफ कॉम्पोजिट वॉल्केनो, और देखने में अनेक थोड़ा सा कॉम्पोजिट वॉल्केनो की तरह होता है। ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ सॉरी, बट दे आर लोकेटेड इन द डीपर डेप्थ। इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा that finds its way to the surface. The Karnataka plateau is spotted with domal hills of granite rocks. कर्नाटक प्लेटो में जो डोमल शेप्ड हिल्स दिखा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वही जो है लैकोलिथ या बैथोलिथ का एग्जाम्पल है। अब देखो लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सील्स। एज एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड्स ए पोर्शन ऑफ द सेम मे टेंड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हेरेवर इट फाइंड्स ए वीक प्लेन। इट मे गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो ये लैकोलिथ, फैकोलिथ और सील्स जो है ये जस्ट फॉर्म्स है। इनके डेवलपमेंट सॉसर शेप्ड कॉन्केव टू द स्काई बॉडी, इट इज कॉल्ड लैपोलिथ। तो अगर ये सॉसर शेप्ड बन गया, कॉन्केव शेप्ड बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैपोलिथ बोलेंगे। अच्छा शेप को देख लेते हैं एक बार। तो देखो लैपोलिथ दिखाया क्या क्या, अरे जा ये तो दिखाया नहीं है यहाँ पर लैपोलिथ। तो बेसिकली क्या होता है कि लैपोलिथ जो होता है, देखो मैंने और एक डायग्राम में दिखा था। तो मान लो ये आया, एक लावा निकल के आया और यहाँ पर एक था, तो ये इधर से जाकर ऐसे करके कॉन्केव शेप में ये ऐसा हो गया है ना, तो इसको हम लैपोलिथ बोलेंगे। सॉसर शेप बन गया तो उसको लैपोलिथ बोलेंगे। तो ये शेप याद रखना कि ये सॉसर शेप्ड है, कॉन्केव है, उसे हम लैपोलिथ बोलते हैं। ए वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिनक्लाइंस और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन इन फोल्डेड इग्नियस कंट्री। सच वेवी मटेरियल्स have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers subsequently developed as batholiths. These are called the फैकोलिथ्स। तो फैकोलिथ की बात वही हमने पहले भी कर लिया। फैकोलिथ की बात, ये जो बैथोलिथ है तो ये सॉरी लैकोलिथ की बात किया था हमने ना, अब फैकोलिथ की बात कर रहे हैं। ओके फैकोलिथ क्या होता है, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि वही भी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। ओके
तो जो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, तो ये मान लो एक वेव है, इसका वेव का यहाँ पर जमेगा या फिर यहाँ पर जमेगा। तो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन एट टाइम्स फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन इज फोल्डेड इन फोल्डेड इग्नियस कंट्री। सच वेवी मटेरियल्स हैव ए डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ सोर्स बीनीथ इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा चेम्बर्स। तो यहाँ से जो है बैथोलिथ से आता है लावा, ठीक है, बैथोलिथ से लावा यहाँ पर आता है, और ये यहाँ पर अगर जम गया तो उससे हम क्या बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे, ठीक है। तो बैथोलिथ के एक बार देख लो क्या था, ये देखो बैथोलिथ से मान लो यहाँ पर आया, जैसे करके लोकोलिथ आया है, तो यहाँ से आया और कोई किसी वेव की या सिंक्लाइन या एंटीक्लाइन में अगर ये जम गया वेवी फॉर्म में थोड़ा सा, तो इसलिए वेवी फॉर्म बोल रहे हैं ना, ये वेव में जम रहा है तो वेव फॉर्म में ही बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फैकोलिथ बोलेंगे। ये वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स, तो ये क्या होता है, शेप क्या होता है, वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स होता है। एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन, इसलिए इसको फैकोलिथ बोलते हैं। नाउ द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सील। नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज आर कॉल्ड सील्स or sheet depending on the thickness of the material. The thinner ones are called sheets while the thick horizontal deposits are called seals. इसका देखो इमेज हम देखेंगे, जो क्या सील एंड सील्स है, तो देखो सील्स होता है हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल होगा उससे हम डाइक बोलेंगे, ठीक है, आसान है। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड सील और सीट। अच्छा, सील का और एक भी नाम है क्या, सीट बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, अगर इसका मटेरियल जो थिकनेस अगर ज़्यादा है तो सील कहेंगे, अगर कम है तो उसको सीट कहेंगे। दिस थिनर वंस आर कॉल्ड सीट्स व्हाइल द थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सील्स। ओके, या नाउ डाइक्स के बारे में जानते हैं, एंड दिस इज द लास्ट वन। व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू क्रैक्स एंड फीचर्स डेवलप्ड इन द लैंड, इट सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अगर ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो गया ऐसे 90 डिग्री की तरफ, तो इसे हम डाइक कहेंगे। इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजिशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइक्स। दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव forms in the western Maharashtra area. Okay, western Maharashtra area. These are considered the feeders of the eruptions that led to the development of the Deccan troughs. These are the most commonly found intrusive forms in the western Maharashtra area. These are considered the feeders for the eruptions. ये क्या है, that led to the development of the Deccan troughs. अच्छा, मतलब डाइक के थ्रू ही जो है महाराष्ट्र में ये डेक्कन ट्राफ्स बने थे, ऐसे कुछ बोल रहा है, फीडर्स। दीज आर कॉन्सिडर्ड द फीडर्स फॉर द इरप्शंस दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ट्राफ्स। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और बाकी के चैप्टर जो है मतलब चैप्टर फोर्थ से हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।